India, and many more. Sir has selected as a brand ambassador for Bentham Science and Lombard Publication, Germany. He has near about 42 national and international publications. He recruited as a judge in various pharma competition. He has participated near 60 pharma national and international conferences and is an active member of various pharmacy journals. He has achieved lots of awards like Young Scientist Award, Best Educationist Award, a Rising Star of the Year. Now, presently, he is working as an senior assistant professor in School of Pharmacy, Babu Banarsi Das University, Lucknow. I welcome you, sir, on behalf of KIT team, and we request you to please start the session. Thank you thank you so much, ma'am. It was a very nice introduction. Thank you so much. आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir, we are audible. Okay, You are audible okay, to us. okay, okay, okay. Respected Rajneesh Gupta, HOD sir, and Dr. Anjali, Dean Academics, and all my faculty members. Today we are going to discuss. There is any student present or not? No, sir, there is no students, only all the Okay, okay, faculties from okay. different Then colleges and from okay, our okay. college are present. Okay, okay. And respected all my seniors and my dear juniors. Today we are going to discuss on very important topic that is role of softwares in pharmacology, or you can say we are going to discuss the alternative of animals. मतलब हम जानवरों को जो एनिमल्स प्रैक्टिकल में यूज होते हैं, चाहे वो रिसर्च पर्पज से यूज होते हैं, चाहे वो टेस्टिंग में यूज होते हैं, चाहे वो क्लिनिकल टेस्टिंग में यूज होते हैं, तो हम उनको कैसे बचा सकते हैं, हम उनको कैसे पेन कम दे सकते हैं, हम उनको स्ट्रेस कैसे कम दे सकते हैं, इसी चीज पे आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कैसे भी हम रिसर्च में बेयर मिनिमम नंबर ऑफ एनिमल्स को यूज करके अपनी रिसर्च को ऑथेंटिक, एथिकल और अच्छा बना सकते हैं, या हमारे पास ऐसे कौन से वो संसाधन है, ऐसे कौन सी वो अपॉर्चुनिटीज हैं, या हमारे पास कौन से ऐसे रिप्लेसमेंट हैं जिनको हम यूज करके एनिमल को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर एनिमल बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल में यूज होने लगेंगे तो इससे हमारा इकोसिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगता है। इसी चीज को देखते हुए कई बहुत सारे एनिमल हैं, जैसे राना टिग्रीना, फ्रॉग। फ्रॉग जो एनिमल है वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बैन कर दिया गया, एक्सक्यूज मी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बैन कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हम बहुत ज्यादा एनिमल अपनी रिसर्च में यूज करने लगेंगे तो हमारे पास हो सकता है कि आने वाले टाइम में एनिमल बचेंगे ना, जिससे हम उनको अपनी रिसर्च में ले पाएं और एक ऑथेंटिक डाटा को हम जनरेट कर पाएं। सो शैल आई स्टार्ट द पीपीटीज? Yes, sir. ओके मैम। Just wait for a minute. Are you visible? Yes, sir. The So PPT you is are visible. PPT is visible or not? I think PPTs are visible, I think. PPTs are visible? Yes, sir. Clearly visible, ma'am? Yes, sir. PPT is visible? Yes, sir. PPT is visible. You can continue. Okay, okay. All of you can easily see in the PPTs. Okay. So today my topic is that there is a role of software in pharmacology, or you can say the role of software in pharmacology or alternative to animals के animals के कौन कौन से हमारे पास alternatives हैं जिनको हम use करके अपनी research को authentic बना सकते हैं। Okay.
Shall we start with the very basic concepts of pharmacology? मैं आपको बहुत बेसिक से नीचे से उठा के ऊपर ले चलूंगा। देखिए, एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स को किस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। एनिमल्स जो होते हैं हमारे एनिमल्स लेबोरेटरी एनिमल्स और हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। तो अगर हम एनिमल्स को डिफाइन करें, अगर एनिमल्स की डेफिनेशन कहें तो एनिमल्स की डेफिनेशन क्या होगी? एनिमल्स animals are the living creature other than human beings. Animals are the living creature other than human beings. मैम, क्या मेरी पीपीटी शो हो रही है? हेलो हेलो। मैम, पीपीटी शो हो रही है क्लियरली? यस सर, पीपीटी क्लियरली शो हो रही है। ओके, एनिमल्स आर द लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बींग्स। अगर हम एनिमल को कैटेगराइज करें तो हमें डोमेस्टिक एनिमल्स और लेबोरेटरी एनिमल्स, दो तरीके से हमने उनको क्लासिफाई किया गया है। लेबोरेटरी एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर मैन मेड टूल्स। मैन मेड टूल्स का मतलब होता है, लेबोरेटरी एनिमल्स भी एनिमल की एक कैटेगरी होती है, लेकिन हम एनिमल्स को अपने हिसाब से एक्रोमेडाइज करते हैं, मतलब हम उनको एक पर्टिकुलर चीज के लिए हैबिचुअल बनाते हैं। जैसे उनको इस टाइम दवा पीनी है, आप देखिएगा कि जब भी हम किसी रिसर्च में जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो एनिमल्स को हम एक पर्टिकुलर टाइम पे दवा देते हैं। जैसे हम उनकी सुबह डोजिंग कर रहे हैं या हम उनकी शाम को डोजिंग कर रहे हैं, तो ज्यादातर रिसर्च में हम 2 टाइम या 3 टाइम डोजिंग करते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली एक दिन वो दवा नहीं पिएगा, दूसरे दिन वो दवा नहीं पिएगा, लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, क्या कहते हैं, वो उसी टाइम पे बहुत इजीली आपकी दवा पीने लगेगा। तो इसको कहते हैं लेबोरेटरी एनिमल्स, जिसको कि आपने अपने हिसाब से बनाया। मींस लेबोरेटरी एनिमल्स आर मैन मेड टूल्स। अब नीड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की हमें बेसिकली नीड पड़ती क्यों है? क्योंकि देखिए, आप कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं या आप कोई भी डेटा जनरेट करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के अंदर उस पर्टिकुलर डिजीज को कॉज कर दें और आप डायरेक्टली अपना एक्सट्रैक्ट या आपका जो भी कंपाउंड है उसको आप डायरेक्टली, चाहे वो सिंथेटिक कंपाउंड है, चाहे वो आपका मरीन कंपाउंड है, चाहे वो आपका जो भी कंपाउंड है, कि डायरेक्टली आप उसको जो है क्या कहते हैं, दे सकें। तो इस तरीके की जो एनिमल पे हमारी पर्टिकुलर स्टडीज होती हैं, इनको हम प्री क्लिनिकल स्टडीज कहते हैं। और प्री क्लिनिकल स्टडीज के 4 फेज होते हैं। इसीलिए हमें एनिमल की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम डायरेक्टली कोई भी डोज को ह्यूमन बीइंग को हम डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं। वैसे अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स का जो यूज है बहुत पर्पजेस के लिए होता है, जैसे फूड है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्पोर्ट्स है, कई तरीके की ऐसी चीज है जिसमें हम कई तरीके के एनिमल यूज करते हैं। लेकिन रिसर्च में एनिमल्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जो भी हमारे एनिमल्स यूज करे जाते हैं, जैसे माइस हो गया, रेट हो गया, हेमस्टर्स हो गए, आपके रैबिट्स हो गए, स्पेशली जो आपकी फिश होती है, जिसमें आपकी जीब्रा फिश होती है, आपकी बर्ड्स होती हैं, ग्यूनिया पिग्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ये कॉमनली ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके पर्टिकुलर रिसर्च में यूज किए जाते हैं। और यू कैन से दिस सर्व एज ए टूल फॉर द रिसर्च। एक तो हम एनिमल्स को रिसर्च में यूज करते हैं टू जनरेट अवर डेटा और टू गेट अवर रिजल्ट और एथिकल रिजल्ट। इसके अलावा एनिमल से हमें बहुत सारी दवाएं मिलती हैं, बहुत सारी वैक्सीन मिलती हैं, और क्या कहते हैं, कई तरीके के मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो एनिमल के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। अगर मैं आपसे पर्टिकुलरली डेटा की बात करूं, 2012 की डेटा की बात करूं, तो लगभग 1,131,000 एनिमल यूएसए में यूज किए गए हैं 2012 के अंदर। 2012 के अंदर 2.19 मिलियन एनिमल्स जर्मनी में यूज किए गए हैं, और इनके जो ब्रीडिंग सेंटर्स होते थे वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में प्रेजेंट होते थे। शुरू से ही एक चीज रही है कि एनिमल को स्ट्रेस देना, एनिमल को परेशान करना, ये पर्टिकुलरली क्या रहा है, एक डिबेटिंग इशू रहा है कि एनिमल जो होते हैं इनको कितना स्ट्रेस दिया जाए, हम किसी एनिमल को परेशान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की जब चीजें बहुत ज्यादा सामने आई, तो हर कंट्री ने अपनी एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई। जैसे रॉयल सोसाइटी है आपकी, एनिमल्स की रॉयल सोसाइटी, और अपने अगर इंडिया की बात करें तो CPCSE है, जैसे कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एनिमल। इस तरीके से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन है। इस तरीके की कई ऐसी कमेटी बनी जिन्होंने अपने कुछ प्रोटोकॉल्स दिए, कुछ पर्टिकुलर
चीजें दी जिनके अंदर उन्होंने कुछ एथिक्स बनाए कि हाँ जी आप इतने ग्रुप्स बना सकते हैं, इतने ग्रुप्स के अंदर आप इतने एनिमल्स ले सकते हैं। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ तो एनिमल्स का कंट्रीब्यूशन हमारे रिसर्च के अंदर जब हम कोई भी मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं वो ह्यूमन बीइंग से ज्यादा होता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी ह्यूमन बीइंग को कोई दवाई नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की स्लाइड में आप यू कैन क्लियरली सीन दैट कि कुछ इस तरीके की सोसाइटीज हैं जो कि एनिमल एथिक्स कमेटी को डील करती हैं। इसके अलावा हर जहां पे भी एनिमल्स यूज होते हैं रिसर्च के लिए उस जगह पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर इथिकल कमेटी होती है जो कि आपको प्रोक्यूर करती है एनिमल्स को कि हाँ इस रिसर्च के अंदर आप 10 एनिमल यूज कर सकते हैं या 20 एनिमल यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि जितने हो हम कम से कम एनिमल्स यूज कर सकें। अब मैं आपसे बात करता हूं कॉन्सेप्ट की कि 3R कॉन्सेप्ट क्या होता है। 3R कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे 1957 में, चार्ल्स ह्यूम ने रिप्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि हम जहां तक हो रिप्लेसमेंट कर दें, लेकिन क्या होता है ना कि हमारी रिसर्च है, रिसर्च के अंदर हम पर्टिकुलरली हर चीज को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी दवा, क्योंकि अपने कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका सिस्टम या जिनका स्केलेटन या जिनकी जो फिजियोलॉजी होती है वो जस्ट इक्वल टू ह्यूमन बीइंग होती है, तो ये तो संभव ही नहीं है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को डायरेक्ट आर्टिफिशियली इन विट्रो या इन सिलिको स्टडी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि नहीं ये मॉलिक्यूल जो है इजीली ह्यूमन बीइंग के अंदर दिया जा सकता है। तो इसके बाद रजेल नाम के एक साइंटिस्ट है 1959 के अंदर, उन्होंने 3R कॉन्सेप्ट दिया। 3R कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने कहा कि 3R, रिडक्शन, रिफाइनमेंट, रिप्लेसमेंट। अगर हम रिडक्शन, रिफाइनमेंट और रिप्लेसमेंट की अप्रोच को लेके चलें तो हो सकता है हम कम से कम एनिमल्स को यूज करेंगे। तो रिप्लेसमेंट के अंदर दो तरीके के रिप्लेसमेंट आए, एक आपका रिलेटिव रिप्लेसमेंट और एक आपका एब्सोल्यूट रिप्लेसमेंट। तो रिलेटिव रिप्लेसमेंट के अंदर क्या हम थोड़े से एनिमल यूज कर सकते हैं, और जबकि एब्सोल्यूट रिप्लेसमेंट के अंदर हम कोई भी एनिमल का यूज नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात आपसे करता हूं रिडक्शन की। रिडक्शन के अंदर आपको ये बताया गया कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, अभी सपोज करिए आपको उसकी एंटी डायबिटिक एक्टिविटी चेक करनी है, या आपको उसकी एंटी अल्सर एक्टिविटी चेक करनी है, या आपको कोई एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी चेक करनी है, तो आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, क्या आप सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। ओके, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आप, ठीक है, आपको जितने एनिमल्स आपको दे दिए गए कि हाँ आपको 20 एनिमल्स दे दिए गए, आपको 25 एनिमल्स दे दिए गए, आप वो एनिमल्स, एक जो एनिमल एथिक्स कमेटी ने आपको प्रोवाइड करें, आप उन एनिमल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसका फार्माकोकाइनेटिक डेटा जनरेट करना है या आपको उसका एक्सक्रीशन डेटा जनरेट करना है, फार्माकोकाइनेटिक डेटा मीन्स आपको उसकी एडीएमई जनरेट करनी है, तो उसके लिए आपको एनिमल्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको, जैसे सपोज करिए उसका मेटाबॉलिक डेटा अगर आपको जनरेट करना है तो आप उसका हेपेटोसाइट कल्चर ले सकते हैं या आप उसका किडनी कल्चर ले सकते हैं। उसके साथ ही आप उसके मेटाबॉलिक और फार्माकोकाइनेटिक जो डेटा है आप उसको इजीली जनरेट कर सकते हैं। रिफाइनमेंट के अंदर ये संशोधन डाला गया, या रिफाइनमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो ये कहा गया कि जैसे बहुत सारी स्टडीज होती हैं उनके अंदर जो केजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस तरीके के जो मतलब केजेस होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उस रजल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि अगर हम कोशिश करें कि हम कुछ इस तरीके की चीज कर लें कि जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स केज है तो उस कॉम्प्लेक्स केज की जगह हम कोई सिंपल केज ले लें जिससे एनिमल को बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो, एनिमल को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली कहते हैं रिफाइनमेंट का कॉम्प्लेक्स। जैसे आप डायरेटिक्स स्टडीज परफॉर्म करते हैं, या मैं आपको बताऊं आप डायरिया की स्टडीज परफॉर्म करते हैं, या बेसिकली सिंपली अगर हम बोले हम लर्निंग या मेमोरी स्टडीज परफॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि
जो केजेस यूज किए जाए, जैसे लर्निंग मेमोरी, इसमें होल बोर्ड एक केज हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि एनिमल को ऐसे सीधे ऊपर की तरफ देखना होता है, तो उसमें क्या होता है, उसको स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ता है। तो उस स्ट्रेस को रोकने के लिए उसकी जगह, जरूरी नहीं है कि हम अगर 4 दिन की स्टडी कर रहे हैं तो हम उस स्टडी को 8 दिन की स्टडी भी कर सकते हैं, उसको 8 दिन की स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन सिंपली 8 दिन की स्टडी बढ़ा दें और उस जगह अगर हम उस एनिमल को 4 दिन की जगह 8 दिन करके और उसके स्ट्रेस को थोड़ा कम कर दें, तो कहीं ना कहीं हम इथिक्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये रिफाइनमेंट का स्टेप हुआ। रिप्लेसमेंट के स्टेप की बात करें तो रिप्लेसमेंट के स्टेप की जगह हम क्या कर सकते हैं कि अगर पॉसिबल है तो हम एनिमल्स को किसी दूसरी स्टडी के साथ रिप्लेस करें। जैसे बहुत सारी इन विट्रो स्टडी होती हैं, इन सिलिको स्टडी होती हैं। आई थिंक इन विट्रो इन सिलिको आपको क्लियर होगा। इन विट्रो स्टडीज जो हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या हमारे क्या कहते हैं सेल कल्चर होते हैं, या अलग अलग तरीके की जितनी भी स्टडीज होती हैं, उनको हम आप कह सकते हैं, जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं, अल्टरनेटिव मेथड कह सकते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम है या फ्रूट फ्लाई है। तो अगर हम किसी बड़े एनिमल को खराब ना करके हम कोई छोटा ऐसा एनिमल ले लें, या हम कोई जैसे आपकी फ्रूट फ्लाई ले लें, या हम कोई कल्चर लगा लें, अगर उस कल्चर के थ्रू भी अगर हमको उसी तरीके से ऑथेंटिक डेटा मिल सकता है, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर क्या होता है, फ्रूट फ्लाई होती है। ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक फ्लाई है, ठीक है। इसमें क्या है, 14,000 जीन्स होते हैं इसके 3 क्रोमोसोम के अंदर। तो ये 75% डिजीज के लिए आप इसको बहुत अच्छे मॉडल की तरह यूज कर सकते हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर जो होते 4 स्टेज को अपने क्लियर करता है, एम्ब्रियो, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। और इसके 4 स्टेज पे आप अलग अलग तरीके की 4 स्टडीज कर सकते हैं। जैसे जब ये एडल्ट हो जाती है, ठीक है, या जब ये एम्ब्रियो की स्टेज में है, तो एम्ब्रियो स्टेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन कौन सी दवाएं ऐसी होती है जो एम्ब्रियो को अफेक्ट करती हैं, और कौन सी ऐसी होती हैं जो एम्ब्रियो को अफेक्ट नहीं करती हैं। इसके अलावा जब ये एडल्ट हो जाती है तो इसके एक बार में हजारों न्यूरॉन्स ये प्रोड्यूस करती है। तो अगर ये हजारों न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करती है, तो इस केस में ब्रेन की जितनी डिजीज होती हैं, जैसे आपके पार्किंसन डिजीज है, या आपकी अल्जाइमर डिजीज है, या आपकी हंटिंग्स डिजीज है, तो इस तरीके की न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, उनको आप इजीली फ्लूट फ्लाई को आप इजीली उन डिजीज के लिए एज ए मॉडल यूज कर सकते हैं। अरे आपको क्या जरूरत है कि आप 10 चूहे लें और उसके अंदर उनको उसके अंदर ट्रीमर इंड्यूस करें, या आप उसके अंदर क्या कहते हैं रिजिडिटी इंड्यूस करें। हम सिंपली फ्रूट फ्लाई ले सकते हैं, तो उससे हमारा एनिमल का जो वर्ड है उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आगे हमें किसी पर्टिकुलर रिसर्च पे जाना हो, जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च अगर हम कर सकते हैं, तो फ्रूट फ्लाई विल बी द वेरी गुड चॉइस। इसके अलावा कई आप इन विट्रो कल्चर कर सकते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल स्टैटिकल मेथड्स होते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपकी जेनेटिक स्टडीज हैं, सेलुलर डिफरेंशिएशन है, इसके अलावा जेनेटिक है, मॉलिक्यूलर स्टडीज हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपका कैंडिडा एल्बिगेंस है, इकोलाई है। इकोलाई आपका जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, गोनोकोकाई है आपका गोनोरिया के लिए होता है, और आपका जो साल्मोनेला टाइफी है वो सिफिलिस के लिए। तो आप इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके इनका कल्चर करके किसी तरीके से हम एनिमल्स को बचा सकते हैं। मीन्स हम बेयर मिनिमम नंबर ऑफ एनिमल्स को हम यूज कर सकते हैं। ये जो इमेज है क्लियरली शो कर रही है कि आप इन विट्रो मेथड को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे रैट रखे हुए हैं और एक सारे में सिस्टम रखा हुआ है। तो ये इमेज क्लियरली इस चीज को शो कर रही है कि जो रैट्स हैं वो अपनी सेविंग के लिए कह रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर यूज कीजिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बच सकें। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि अगर हमारे पास पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट है तो उस हम पर्टिकुलर रिप्लेसमेंट को यूज करें। अब मैं आपसे कुछ सॉफ्टवेयर्स की बात करूंगा। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका एग्जांपल, अब हमारा पर्टिकुलर जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो शुरू होता है कि कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जो सॉफ्टवेयर्स को हम यूज करके अपनी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज को इजी बना सकते हैं। यहाँ पे कई फार्माकोलॉजी के भी टीचर्स होंगे तो वो स्पेशली देखें। देयर इज एनी फार्माकोलॉजी फैकल्टी प्रेजेंट?
Yes, sir. हाँ, तो वो भी इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इस समय क्या है कि सॉफ्टवेयर जो है उसका यूज बहुत ज्यादा, सॉफ्टवेयर कहिए या आप कैल कैल कह सकते हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर एडेड लर्निंग या काल का फार्माकोलॉजी में बहुत बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा एनिमल्स को सेव कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि मैंने सामने एक सॉफ्टवेयर यूज किया, रुद्रास फार्माकोलॉजी। रुद्रास फार्माकोलॉजी बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है, ये इजीली आपको गूगल पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें आप बेसिकली जो अपने स्टूडेंट्स हैं, यूजी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ड्रग के क्लासिफिकेशन बता सकते हैं, या अलग अलग कैटेगरी की ड्रग है। मेन इसमें जो आप परफॉर्म करा सकते हैं डेट इज बायोलॉजिकल ऐसे, बायो ऐसे। बायो ऐसे क्या है, सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म कराने बहुत कई सारे सॉफ्टवेयर मैं अपने अपने यहाँ भी यूज करता हूँ, लेकिन रुद्रा फार्माकोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे बायो एस एफ एसिटाइल कोलिन, बायो एस एफ एड्रीनलिन, ड्यूट्रिब्यून, डिजिटालिस, इंसुलिन, हिपेरिन सोडियम, ऑक्सीटोसिन, ब्रोसिन। इस तरीके की कई सारी ड्रग हैं जो इजीली आपके कोर्स में भी इनकॉर्पोरेटेड हैं, और आपको इजीली इसमें सारे बायो ऐसे आप, हाँ इसमें आप एग्जाम नहीं ले सकते, लेकिन बच्चे इजीली देख सकते हैं कि बायो ऐसे कैसे परफॉर्म हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे वेल नोन सॉफ्टवेयर हैं। देखिए, हर चीज का कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है और हर चीज का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की बात करें, तो इसके अंदर हम एडवांटेजेस की बात करें तो हम बहुत सारे एनिमल्स को जो है अवॉइड कर सकते हैं, और आप एक अच्छा डेटा जनरेट कर सकते हैं, आप एक स्टैटिकल डेटा जनरेट कर सकते हैं। एक टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ जो भी मैं सामने आपने चारों सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं, ये चारों सॉफ्टवेयर इजीली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। और ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ये सॉफ्टवेयर आपके यूजी और पीजी लेवल पे दोनों पे काम कर देंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी और एक्सकोलॉजी प्रो ये आपको मतलब नहीं मिल पाता है, तो अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे पास ले सकता है, मेरे पास इसका एक लिंक है, वो मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की काफी लिमिटेशन भी हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस ये हो जाती हैं कि अगर हम एनिमल पे अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तो हम डायरेक्टली लिविंग टिश्यू के साथ कांटेक्ट करते हैं, लेकिन इस जगह पे हम डायरेक्टली लिविंग टिश्यू के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते, वो जस्ट एक डेटा जनरेट करता है और उस जनरेशन को। इसके अलावा सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि सॉफ्टवेयर में डोजेस जो होती हैं फिक्स होती हैं। कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वो 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, अगर आपको 0.6 या 0.3 देना है तो उस केस में आप सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर काफी एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि हर साल इनका रिन्यूएबल होता है, और कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर जैसे कुछ एल्सवेयर जो सॉफ्टवेयर बनाता है, या जो बड़ी बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, उनकी कॉस्ट लगभग 1 से 1.5 लाख के तकरीबन होती है। लेकिन ये 4 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आप थोड़ी सी कोशिश करें तो इनका तोड़ आप निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी, एक्सकोलॉजी प्रो। यहाँ मैं आपको एक्सकोलॉजी की थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ एक फ्रॉग है। फ्रॉग जो है बेसिकली इकोसिस्टम डिस्टरबेंस की वजह से फ्रॉग जो है वो अब आपका क्या कहते हैं वैन हो गया है। लेकिन यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर आप देख सकते हैं फ्रॉग की सिस्टम के ऊपर डिफरेंट ड्रग को हम यहाँ पे कई सारी आपकी ड्रग्स हैं, जैसे आपकी ये तमाम एसिटाइल कोलिन है, एड्रीनलिन है, या जो डिफरेंट टाइप की ड्रग हैं, तो आप फ्रॉग की जो मसल्स हैं, फ्रॉग मसल्स के ऊपर आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करके कि हाँ ड्रग का इधर आप एक साइड देख रहे हैं, एक उसका जो एनलार्ज करके व्यू दिखाया गया है, तो इस फ्रॉग की इस मसल के ऊपर अगर हम कोई भी ड्रग अप्लाई करते हैं तो कॉन्ट्रेक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है। लेकिन ये एक सिंपली एक डेटा होता है कि हाँ हमने ये डाला और ऐसा हो गया। अगर हम उस चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं लिविंग टिश्यू के ऊपर, तो उसका एक ऑथेंटिक रिजल्ट आता है। खैर यहाँ पे हमें एनिमल्स को बचाना होता है, तो इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि फ्रॉग मसल्स के ऊपर जो है, या डॉग की मसल्स के ऊपर जो है, हम डिफरेंट ड्रग के इफेक्ट देख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हिस्टामीन है, एड्रीनलिन है, तो एक पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर कई सारी ड्रग्स जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, पर्टिकुलर डोज उनकी फिक्स होती है। उस डोज को आप सिस्टम के हिसाब से इंक्रीज भी कर सकते हैं और उस डोज को आप सिस्टम के हिसाब से डिक्रीज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक ग्राफ मिल जाता है। और एक चीज इस सॉफ्टवेयर की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आप टॉक्सिक डोज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये आप देखिए, इस तरीके से आपके ग्राफ आपको मिल जाते हैं। नीचे एक लाइव वीडियो है, लाइव वीडियो में आप इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। अब हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो थोड़े से बड़े लेवल पे काम करते हैं या जो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे आपका सिम हर्ट सॉफ्टवेयर होता है। तो सिम हर्ट सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक पर्टिकुलर असेंबली होती है। अच्छा, कई जगह ऐसे भी इस तरीके के भी सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, जैसे अगर आप एनिमल को यूज कर रहे हैं, आपने एक लाइव एनिमल लिया, लाइव एनिमल को आपने खत्म किया या आपने उसको काटा तो एनिमल को काटा या उसको जैसे खत्म किया, तो क्या होता है, एक एनिमल खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ही हमको अगर एनिमल लिविंग टिश्यू पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, तो उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमारे ये आपके कसाई वाड़े होते हैं या ये सब होते हैं, तो वहां पे कहीं पे एनिमल अगर कट रहा है, तो आप उसकी इंटेस्टीन ले सकते हैं, आप उसका हर्ट ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, जिनको मैं गाइड करता हूँ फार्माकोलॉजी के अंदर। जैसे हमें गोट आई चाहिए होती है, तो क्या होता है कि हम पहले से उस चीज की बात कर लेते हैं कि हाँ, मतलब ये इसको जब आप काट देंगे तो उसके बाद, तो उसमें आपको किसी एथिकल अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। आप उस आई को इजीली ले सकते हैं और उसको आर्टिफिशियली सर्वाइव भी करा सकते हैं। तो ये सिम हर्ट जो सॉफ्टवेयर है, आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप ऑर्गन ले रहे हैं, वो ऑर्गन आप एक पर्टिकुलर एनिमल के कटने के बाद आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी असेंबली होती है, पूरे वोल्टेज लगे होते हैं, आप वोल्टेज लगा के उस पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसको आर्टिफिशियली, जैसे हम बेसिकली प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं यूजी और पीजी को, जब हम ये रोटेटरी ड्रम पे प्रैक्टिकल कराते हैं, तो हम लोग इंटेस्टीन लेते हैं, इंटेस्टीन का कोई पर्टिकुलर पार्ट लेते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम पीएसएस दे के या हम क्या कहते हैं, अलग अलग ऑक्सीजन दे के या तरीके तरीके की चीजें दे के हम उसको किसी भी तरीके से सर्वाइव करवाते हैं। तो सेम उसी बेसिस पे ये सिम हर्ट सॉफ्टवेयर काम करता है कि हम एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे के उस पर्टिकुलर हर्ट को सर्वाइव कराते हैं। और हाँ, हर्ट जैसे आपने एनिमल खत्म हुआ, एनिमल को काटा गया, उसके बाद आप पीएसएस बना के इजीली दुकान ले जा सकते हैं और उसमें हर्ट को डाल के ला सकते हैं। थोड़ी देर हर ऑर्गन सर्वाइव करता है। तो यहाँ पे जो आप ड्रग्स देख रहे हैं, एसिटाइल कोलिन है, एट्रोपिन है, एपिनेफ्रिन है, फेंटोलामीन, प्रोपेनोलॉल और जो भी वर्मेपिल, आपकी जो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो इस हिसाब से जो नीचे आप ग्राफ देख रहे हैं, जैसे अगर कोई भी ड्रग है, जैसे एड्रिनलिन है, एड्रिनलिन जो है पावरफुल कार्डियक पैरामीटर्स को बढ़ाता है, तो ग्राफ बड़ा होने लगेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो उस केस में ग्राफ छोटा होने लगेगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट ड्रग के जो इफेक्ट हैं उनको चेक करते हैं। ऑल्दो सिम हर्ट इज ए वेरी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। इसके बाद आपके सिम वेसल की बात करते हैं। सिम वेसल सॉफ्टवेयर भी उसी बेसिस पे काम करता है। सिम वेसल सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, जो हमारी वेसल्स होती हैं, जैसे उनके अंदर हम कॉन्ट्रैक्शन पता करते हैं, जैसे इंटेस्टाइन है या हमारी स्टोमक की वेसल्स हैं, ये जितनी भी हैं, तो उस तरीके से हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, उसमें जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एंट्रम और एरोटा, दो जगह लिखा हुआ है। तो ये जो आपकी पेट्री प्लेट होती है, इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर ऑर्गन को डाल के पूरी असेंबली को हम फिट करके और वोल्टेज अप्लाई करके उसकी जो डिफरेंट ड्रग्स हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन, एट्रोपिन, जो आप ऊपर ड्रग के नाम देख रहे हैं, इस तरीके से एक पर्टिकुलर ग्राफ ले सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल जिसको हम कोट कर रहे हैं, वो कंसंट्रेट वो उसको क्या कहते हैं, वेजल्स कंस्ट्रिक्ट करा रहा है या रिलैक्सेशन कर रहा है। इस तरीके से आपका सिम मसल्स होता है। सिम मसल्स जो होता है वो पूरी तरीके से मॉडिफाइड वर्जन होता है आपका रोटेटरी ड्रम का। यहाँ आप देख रहे हैं कि बेसिकली जो मसल्स लगी हुई है, वो मसल कोई भी है, ठीक है, इस मसल के ऊपर एक ऑटोमेटिक असेंबली फिट है, बगल में आप देख रहे हैं सिस्टम रखा हुआ है, और इस सिस्टम के थ्रू जो होती है ड्रग ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है। यहाँ पे जो ड्रग है उसके कंसंट्रेशन हमको बना के रखने पड़ते हैं, वो ड्रग जो होती है उस पर्टिकुलर उसके ऊपर अप्लाई होती है और हमें एक ग्राफ मिलता चलता है। ये सिम नर्व सॉफ्टवेयर के अंदर जो नर्वस सिस्टम या जो न्यूरॉन होती है, उसकी एक्टिविटी को हम पता कर सकते हैं। ये जो सिम हर्ट है, सिम वेसल है, सिम नर्व है, सिम मसल है, ये इजीली वर्चुअल फिजियोलॉजी सॉफ्टवेयर के अंदर ये आते हैं और आप इनको इजीली ले सकते हैं। इट इज नॉट मच मोर एक्सपेंसिव, अगर आप चाहें तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। एक ये हमारा यूजी लेवल का, पीजी लेवल का बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर होता है एक्सफैम, जो कि नॉर्मली आपको हर जगह मिल जाता है। इसमें आप देख रहे हैं एनिमल बने हुए हैं, ग्यूनिया पिग है,
रैबिट है, डॉग है, फ्रॉग है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं जिन्हें आप इजीली, जैसे आप ये देख सकते हैं कि सामने मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि रैबिट है, रैबिट की दोनों आईज दिख रही हैं, उसके बाद यहाँ टॉर्च है, कॉटन वूल है, तो आप पर्टिकुलर आई को सेलेक्ट करके, ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है आप यहाँ चाहे जितने भी रैबिट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं उस पर हम चाहें तो जितने भी एनिमल्स जो हैं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप ड्रग अप्लाई कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर जैसे ड्रग जिस कैटेगरी की ड्रग होगी उससे उसका इंट्राओक्यूलर टेंशन बढ़ेगा या कम होगा, या टॉर्च का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कॉटन वूल का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इस तरीके की चीजों को हम इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो कई मैंने यहाँ आपको सॉफ्टवेयर ऐसे बताए, एक्स फार्म, एक्स कोलॉजी, कोलॉजी प्रो, जिनको आप इजीली ले सकते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर्स दो कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें एनिमल ऑलरेडी अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं, और एक वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें हमें एनिमल के डेथ हो जाने के बाद उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देने के बाद उसको जिंदा रखना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर इन दो बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें जो स्टडी में कंक्लूजन है वो यही है कि रिसर्च के अंदर एनिमल का बहुत ज्यादा योगदान होता है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमारी एक मौलिक ड्यूटी ये बनती है कि हम ज्यादा से ज्यादा एनिमल को रिप्लेसमेंट कर सकें अदर टेक्निक के थ्रू, चाहे वो इन विट्रो टेक्निक हो, चाहे वो इन सिलिको टेक्निक हो, चाहे एनिमल के खत्म हो जाने के बाद हम उसके पार्ट को आर्टिफिशियली जिंदा रख के हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, या हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करें। लेकिन हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम पर्सनली अपने फायदे के लिए एनिमल की डेथ कर पाए। जब हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है तो हम एनिमल एथिक्स कमेटी के थ्रू एनिमल रिलीज करा सकते हैं और उनको अपनी रिसर्च में यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काफी सॉफ्टवेयर्स थे जिनको मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इतने तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है। No, sir, there is no problem, and please continue the session. Okay, can everybody open your mic ताकि मैं सबकी आवाज सुन चुकूं। अभी मैंने बहुत ज्यादा बोला, कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने एक छोटा सा गेम डाला, क्या आप उसको खेलना पसंद करेंगे? Yes, sir, why not? Sure. हाँ, तो सब लोग अपना माइक खोल लें। Identify the eyes of this beautiful lady. Who is this beautiful lady? ऐश्वर्या राय। अरे वाह, क्या बात है, she is ऐश्वर्या राय। Thank you so much. Okay, who is this handsome actor? जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम, क्या बात है, किसने बताया? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सर स्वाति मैम। ओके, स्वाति मैम जॉन अब्राहम की फैन है। ओके, उसके बाद क्या आप इस हैंडसम एक्टर को पहचान सकती हैं? कौन पहचानेगा? सर ये मयंक सर हैं। ओके, किसने बताया? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर एवरीथिंग, वेरी वार्म थैंक्सफुल टू डॉक्टर रजनीश गुप्ता सर, डॉक्टर अंजलि मैम, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा चांस दिया और मैंने जो भी मेरे बेस्ट बिहाफ पे जितनी भी मेरी नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू सो मच सर। Okay, ma'am. Thank you so much. The session was really very nice. And now I request Dr. Rajesh Gupta sir to please pay a vote of thanks to all the dignitaries. I request Dr. Rajesh Gupta sir to please hello. I request Dr. Rajesh Gupta sir to please pay a vote of thanks to all the dignitaries. Thank you, Rachna ma'am. Good afternoon to all. Myself, Dr. Anish Kumar Gupta, HOD, Pharmacy, KITP,
I am very thankful for the wonderful presentation by the all dignitary, like Dr. Mayan sir, Dr. PK Jain sir, Dr. Thank you, Nisha sir. Sharma ma'am, and Dr. Prakash sir. As we all know, in today's era of e-learning, we all need the upgrade the ourselves with new technology. Today, FDP was very useful for our faculty. So thankful to all. Thank you, sir. Thank you Thank you, so sir. much, sir. Okay. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you On so much. behalf of the KITP team, I'm really thankful to all dignitaries, Dr. Mang sir, Dr. Risha ma'am, Dr. Pushpin Jain sir, and all the dignitaries. I'm thankful to all of you. Thank you. Thank you so much. Thank you.